Hello everyone, welcome back to Simplified Maths. Dear children, we are continuing with chapter 9 differential equation, and in this particular lecture we are starting the last exercise, and probably this will be the last lecture of this chapter. Okay, because I am going to do only 2-3 sums from this exercise, and actually this is also for just a revision because it's a mixed exercise, miscellaneous exercise, means all the types of sums are already done earlier, but though we will try few of them. Okay, there are few problems which are already cancelled for the current year board exam, but we will just take few sums which are not cancelled of this exercise. Okay, and then in the next lecture dosto we will start the new chapter, and the new chapter is very simple one, that is all totally based on the vectors. You know the vectors. Okay, so that chapter we will begin now in the next lecture. Okay, now the whatever the chapters are left, right, vector algebra, and then next chapter is regarding line and plane in space, and then probability are so simple, in fact. Okay, simple in the sense there are many topics cancelled out, and the whatever not cancelled out also quite simple, but we will go for it in the next lecture. Right now just see, I am taking only few sums, थोड़े से सम 2-3 ट्राई कर लेते हैं आज के दिन, सो ऐसा नहीं लगे आपको कि भाई टोटल एक्सरसाइज मैंने छोड़ दिया, दैट इज वाई 6 sum is like this that find the जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन. सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यहाँ पर वो क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन इज, if you see the sum, 6 number, page number 420, dy by dx plus under root of dy by dx plus under root of 1 minus y square upon 1 minus x square is equal to 0. This is the given sum. Okay, now what we will do, इसमें से आप वेरिएबल सेपरेबल भी इजीली कर सकते हो. देखो ध्यान से, that dy by dx is equal to minus this plus term was taken on that side, and not only that, but this whole under root quantity you can write under root separate in numerator and denominator. So minus under root 1 minus y square upon under root 1 minus x square. Okay, clear? So मैंने दो स्टेप एक साथ कर दिया, taken the term on the right hand side and also taken a square root on numerator and denominator separately. Now you can easily do the variable separable. तो उसके हिसाब से क्या होगा, dy के साथ ये चला जाएगा. So dy upon under root of 1 minus y square is equal to minus dx upon under root of 1 minus x square. So हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड. ठीक है, अब इंटीग्रेट करो. इंटीग्रेट करेंगे तो सेम फॉर्मूला विच ऑलरेडी वी नो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, फॉर्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a, दिस साइड इज साइन इनवर्स y अपॉन a इज 1 हियर. ओके, सो इट विल बी सिंपली साइन इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x प्लस c. ठीक है, सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, बट दिस माइनस साइन इनवर्स x इस तरफ ले जाएंगे तो अल्टीमेटली इट विल बी साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू c. ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन आंसर. ओके, राइट. सो दिस इज द वे वी हैव टू डू द प्रॉब्लम्स. खाली रिवीजन के लिए ही मैं ये सब एक्सरसाइज ले रहा हूँ. ठीक है दोस्तों, राइट. नाउ इन द 7 सम नंबर 7 है, तो उसमें मैं खाली आपको स्टार्टिंग की हिंट दे देता हूँ, बाद में फिर आप करोगे एट योर ओन. द गिवन सम जो है उसमें dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब लुक एट द सम, आई एम डायरेक्टली राइटिंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सॉल्यूशन, नॉट राइटिंग द सम.
सो प्लस द टर्म जो है वो उस राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, देन इट विल बिकम नेगेटिव साइन चेंज, सो इट विल बी माइनस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, अब सम देखोगे तो मैंने क्या किया पता चलेगा आपको, और फिर यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। ओके, सो क्या करेंगे, यहाँ से आप डी वाई के अपॉन में ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन एंड इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, राइट। और आगे जो है वो आप डू इट इन द होमवर्क। ओके, क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, नॉट ओनली दैट, अब डिनोमिनेटर में याद आ रहा है ये मेथड इंटीग्रेशन का क्या था मेथड, वी हैव टू राइट द लास्ट टर्म, फाइंड द लास्ट टर्म टू मेक अ परफेक्ट स्क्वायर। लास्ट टर्म फाइंड करने के बाद दोनों साइड वो जो भी लास्ट टर्म आती है एडिंग सब्ट्रैक्टिंग कर देंगे एंड देन वी विल गेट अ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन की फॉर्मूला आपको मिल जाएगी। लास्ट टर्म फॉर्मूला ऑल्सो यू नो, मिडल टर्म द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये 7 सम हो गया दोस्तों। ठीक है, अभी सम नंबर 8 जो है वो भी मैं थोड़ा वो ट्राई करूँगा एक्चुअली। सो सम नंबर 8 में क्या है दोस्तों, सम नंबर 8, so sum number 8 में actually why I am doing this, because it's a particular solution, it's a problem of particular solution, but read it properly. Find the equation of the curve passing through the point. Okay, अब उसमें point जो है ना वो इस तरह से दिया हुआ है, find the point is given 0 pi by 4 whose differential equation is, तो यहाँ पर देखो given differential equation, सबसे पहले जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, तो वो इक्वेशन इस तरह से है, साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स, साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस होगा, ठीक है, प्लस कॉस एक्स साइन वाई डी वाई, कॉस एक्स साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा दिया हुआ डिफरेंशियल इक्वेशन है, और उसमें क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन पासिंग थ्रू 0 पाई बाय 4, ऐसे ब्रैकेट करके दिया हुआ है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ब्रैकेट 0 पाई बाय 4, व्हेन x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई बाय 4, दैट ब्रैकेट गिवन इज नथिंग बट x एंड y, दैट्स ऑल। सो 0 पाई बाय 4 का मतलब x इक्वल टू 0। ओके, ये यहाँ पे लिखेंगे वेयर x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है, और ये हम कब यूज़ करेंगे, आफ्टर द गेटिंग दी जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। सो हियर फर्स्ट थिंग, make a variable separable if possible. So see, sin x cos y dx is equal to, ये प्लस वाली टर्म को सामने ले जाओ, तो इट विल बी cos x sin y dy हो गया। ठीक है, नाउ व्हाट टू डू, दिस साइड इज dx, तो वहाँ पर ये cos x को नीचे लाओ, यहाँ पे dy है तो cos y को ऑपोजिट साइड ले जाओ। सो दिस cos x विल कम ऑन दिस साइड, ऑपोजिट साइड विल गो टू द डिनोमिनेटर। सो sin x इज ऑलरेडी देयर, cos x विल कम डाउन, सो इट विल बिकम व्हाट, tan x dx। ठीक है, tan x dx इज इक्वल टू, ठीक है, राइट, tan x dx हो गया। और मेरे ख्याल से कुछ साइन का यहाँ पे रह गया कि नहीं, ये माइनस होगा, हाँ सॉरी ये माइनस है, बिकॉज ये देखो ये प्लस है, तो प्लस को मैंने ऑपोजिट लिया तो यहाँ पे माइनस रखना मैं भूल गया था। सो अब यहाँ पर dy है तो साइन y के अपॉन में cos y जाएगा, तो इट विल बी माइनस tan y dy। ठीक है, राइट। सो नाउ से वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अभी क्या करेंगे, हम दोनों साइड इंटीग्रेशन करो, एंड इंटीग्रेशन फॉर्मूला tan x की हमको पता है, log mod sec x है ना। सो इंटीग्रेशन tan x
dx, ओके, इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन tan y dy। ठीक है, तो अप्लाई द फॉर्मूलाज। सो इट विल बी log mod sec x is equal to minus log mod sec y। now both the answers are in terms of log, तो मैं यहाँ पर क्या लेंगे, हम log mod c ले लेंगे। ठीक है, राइट। नाउ देर इज टू वे, कि भाई टू वेज आर देयर। एक तो ये माइनस है, तो इन दोनों का आप डिवीजन कर सकते हो, log of c अपॉन sec y। और नहीं तो ये माइनस वाले टर्म को यू टेक ऑन दिस साइड, देन दैट दिस टर्म विल बिकम प्लस। सो log mod sec x प्लस log mod sec y। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, log mod sec x प्लस log mod sec y, प्लस हो गया। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम, इफ इट इज log प्लस log मीन्स एडिशन बिकम्स मल्टीप्लीकेशन, याद है ना। तो इट विल बी log mod sec x इंटू sec y इज इक्वल टू log mod c। ये माइनस वाली टर्म इस तरफ आ गई तो प्लस हो गई, log प्लस log था तो प्लस का मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया। क्लियर। नाउ फ्रॉम बोथ साइड you can remove the log and also both side modulus, so remove the modulus also, and so finally you have sec x into sec y is equal to c। ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। ओके, ये जनरल सॉल्यूशन हमको मिल गया। अभी यहाँ पर व्हाट इज गिवन देयर, नाउ व्हेन x इक्वल टू 0 we are given that y is equal to pi by 4, this is given। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू पाई बाई 4 रख देंगे हम। ठीक है, तो अगर वो रखेंगे तो sec 0 क्या होगा, 1, फिर sec पाई बाई 4 क्या होगा, √2 इज इक्वल टू c, मतलब कि c इज इक्वल टू √2 मिला हमको। अब ये जो c वैल्यू मिली दैट यू रिप्लेस हियर इन प्लेस ऑफ c। ओके, right, so finally you have a particular solution, sec x into sec y is equal to √2। ये हमारा हो गया आंसर। ओके, राइट। what was the question asked, if you see find the equation of the curve passing through the point 0 pi by 4। so हम यहाँ पे लिखेंगे that this is the required curve, required equation ऑफ द कर्व। ये कर्व का हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गया। ओके, राइट। सो दिस इज द वे दोस्तों वी विल डू सम्स, राइट। तो देखो कि इसमें वॉट एवर द सम्स आर गिवन वी जस्ट हैव टू डू अकॉर्डिंगली। सपोज मैं सम नंबर 11 ट्राई करूँ। 11 तो इसलिए ट्राई कर रहा हूँ कि वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है, बट नॉट अ डिफिकल्ट वन। सम नंबर 11, इन द सम नंबर 11 फाइंड अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, इसमें देखो कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है वो है x माइनस वाई इंटू ब्रैकेट dx प्लस dy इज इक्वल टू dx प्लस dy इज इक्वल टू dx माइनस dy। ये हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। एंड गिवन दैट y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू -1 व्हेन x is equal to 0। Not only that, but if you see the textbook, they are given the hint that how to begin the problem. What is the hint given दोस्तों? The hint is that assume put x minus y equal to t। वो लोग ने hint दिया हुआ है, but remember dear children, in the board exam nobody is going to give you the hint। ठीक है, तो इसमें तो hint हमको पता है कि हमको start क्या करना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू टी सपोज करके हम करना है, राइट। बट बिफोर आई डू दैट, इसमें से सबसे पहले हम dy बाई डी एक्स बनाएंगे कुछ भी करके। ठीक है,
अब ये पूरा ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई, सो x माइनस वाई इंटू ये भी डी एक्स प्लस डी वाई भी ब्रैकेट ही है ना, 1 मिनट, हाँ ये भी ब्रैकेट है, दिस इज ऑल्सो ब्रैकेट लाइक दिस, ओके। सो यहाँ पर क्या होगा कि x माइनस वाई इंटू डी एक्स प्लस x माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई, ठीक है। अभी डी एक्स वाले टर्म को सब साथ में ले लो, तो x माइनस वाई इंटू डी एक्स माइनस डी एक्स, दिस डी एक्स कम्स दिस साइड is equal to, now this will go that side, so it will be minus of x minus y dy, and this is minus dy is already there, ठीक है, राइट। तो अभी क्या होगा, therefore you will have just see कि dx कॉमन, यहाँ से dy कॉमन निकाल दे, बराबर, तो कॉमन निकाल दे तो वो क्या हो जाएगा, लेट अस से x माइनस वाई माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, ओके, माइनस ऑफ ये x माइनस वाई, ठीक है, ये माइनस किसके साथ है, इसके साथ ही है ना, तो और ये माइनस 1 और डी वाई, खाली डी वाई कॉमन निकाल दिया हमने, ठीक है, राइट, dy is taken out, dy, sorry, got it, clear or not, okay, right, so now just see कि क्या होगा यहाँ पर कि let's we'll have make it dy by dx, अब dy by dx बनाएंगे तो एक काम ये कर सकता हूँ मैं कि यहाँ से पहले सपोज ये माइनस को मैं बाहर ही निकाल दूँ, तो वो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 डी वाई, ठीक है, x माइनस वाई प्लस 1 डी वाई हो गया। अभी ये जो हमारा सम है x माइनस वाई माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू दिस, अभी इसमें से डी वाई बाई डी एक्स करो, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, सो दिस विल बी x माइनस वाई माइनस 1, ओके, ये तो ऑलरेडी है ही, ये अपॉन में जाएगा, राइट, तो अपॉन में x माइनस वाई प्लस 1, और ध्यान से देखो आगे माइनस है तो माइनस भी रहेगा, जस्ट बी केयरफुल इन दिस थिंग, ओके, राइट। तो अभी देखो मैं यहाँ पर ब्रैकेट कर देता हूँ ऐसे, दिस वे, ओके, एंड नाउ द हिंट व्हाट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक वी विल यूज, व्हाट इज द हिंट गिवन, अभी यहाँ पर आपको हिंट ऐसा दिया हुआ है कि एज्यूम दैट x माइनस वाई इज इक्वल टू टी, ये हमारा सपोजिशन है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन। नाउ वंस यू सब्सटीट्यूट दिस, अब ये सब्सटीट्यूट करने का रीज़न क्या है पता है, बिकॉज यू ट्राई वॉट एवर वे यू ट्राई फ्रॉम हियर, यू विल नॉट बी एबल टू यूज द वेरिएबल सेपरेबल मेथड, मतलब कि जहाँ पर डी वाई है वहाँ पे y और डी एक्स के साथ x यहाँ से सेपरेट नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल, and because of that, and not only that, this is not even the homogeneous type, ये homogeneous type equation भी नहीं है, तो दो में से कुछ भी नहीं हो सकता, सो इसलिए हमको ये सब्सटीट्यूशन लेना पड़ता है, और इससे ये पूरा वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट सी कि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स होगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है, राइट। अभी यहाँ पे रिप्लेस कर दो जैसे होमोजीनियस में करते हैं ना, ओके। सो फाइनली यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स के बदले ये रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 1 अपॉन दिस विल बी टी प्लस 1, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। अब यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल कैसे होगा, now this minus dy by dx I will take on that side, okay, and this minus term I will take on this side, ठीक है, right। तो वो क्या हो जाएगा देखो, this is equal to 1 plus
ओके, यूँ आ जाएगा ये 1 प्लस टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ओके, ये पीछे का जो टर्म एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। 1 प्लस, ठीक है ना, ये माइनस टर्म इधर आ जाएगी, प्लस हो गई, और ये माइनस डी वाई बाई डी एक्स से वो अपोजिट जाएगा तो वो भी प्लस हो जाएगा, तो बराबर है 1 प्लस दिस डी वाई बाई डी एक्स है कि डी वाई बाई डी टी है, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, डी वाई बाई डी टी होना चाहिए, राइट। यहाँ आगे भी देख लेता हूँ। जस्ट अ मिनट, ये यहाँ से कुछ गलत तो कर दिया हमने। ये 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस है। अभी एक स्टेप यहाँ से करना रह गया, एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। तो एल टी वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्या होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स को मैंने सब्जेक्ट बनाना मैं भूल गया, सॉरी। तो ये डी वाई बाई डी एक्स के बदले मैं ये लिखूंगा 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स। तो अभी ये 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, सॉरी, ठीक है। तो अभी के एक्चुअली में क्या हुआ, वो y के बदले t आ गया है, सो डोंट वरी। और नाउ देयर आर टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल इज t, अनदर वेरिएबल इज x। सो t और x को सेपरेट करना है, ठीक है। वो मैंने पीछे लिखा है तो मुझे डाउट गया, इसलिए मैंने फिर से देखा। सो ये हम यहाँ से ये टर्म भूल गए थे स्टेप करना। क्या किया मैंने, इसका डेरिवेटिव जो किया, लेकिन बाद में हमको क्या करना होगा, डी वाई बाई डी एक्स ऑब्टेन करना है, और जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिलती है वो यहाँ पे रिप्लेस करनी थी, दैट आई फॉरगॉट। ओके, सो आई करेक्टेड इट, सो लकीली नाउ देयर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी 1 प्लस डी टी माइनस वन अपॉन दिस टी प्लस वन इज इक्वल टू ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ठीक है ना। ओके, और अभी इसमें करेंगे हम एलसीएम। सो एलसीएम करोगे तो जो भी आएगा t प्लस वन प्लस टी माइनस वन, तो t प्लस टी विल बी 2t अपॉन टी प्लस वन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स हो गया, राइट। तो वेरिएबल सेपरेबल के हिसाब से डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस वन अपॉन 2t डी टी। अब देखो हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड, बराबर। अभी क्या करेंगे, दोनों साइड हम इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है ना। सो इंटीग्रेशन करोगे, सो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी प्लस वन अपॉन 2t। तो एक काम ये कर सकता हूँ मैं कि यहाँ पे भी वेरिएबल सेपरेट कर दो, तो t अपॉन 2t विल बी 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2t dt। द रीज़न ऑफ डूइंग दिस इज, अब सेपरेटली आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हो, इंटीग्रेशन डी एक्स विल बी एक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, इसका 1/2 का क्या होगा, t है ना, सो इट विल बी 1/2 मीन्स t/2 होगा, राइट। एन प्लस इसका क्या होगा 1/2 इंटू लॉग मॉड t, राइट। एन प्लस आइदर यू टेक c और यू टेक log c। मेरे ख्याल से c ले लेते, बिकॉज वो c क्यों लेना पड़े हमको, द रीज़न टू टेक c इज एक ही टर्म लॉग वाली है ना, इसलिए, बराबर कि नहीं। ओके, क्लियर। तो अभी यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे हम, 2 एलसीएम ले लो। तो 2 एलसीएम लेंगे, t की जगह पे x माइनस वाई भी रिप्लेस कर दो, तो 2x इज इक्वल टू t इज x माइनस वाई प्लस log mod x minus y and plus 2c, because 2 is taken as the LCM। 2 हमने क्या लिया है दोस्तों, LCM ले लिया है, ठीक है ना। क्लियर और नॉट, ओके। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस अभी क्या होगा, देखो अब 2c आया, तो पीछे आंसर में आप चेक करोगे ना तो c मिलेगा। सो दैट्स ए प्रॉब्लम कि भाई हमारा आंसर राइट है फिर भी हमको रॉन्ग लगता है। द रीज़न इज वो लोग ने यहाँ पे c डैश ले लिया होगा, 2c डैश आ गया। अब 2c डैश के बदले दे विल रिप्लेस एट c,
दैट्स ऑल, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ठीक है ना। तो अभी क्या होगा यहाँ से, ये 2x माइनस एक्स, तो वो x हो गया, राइट। x इज इक्वल टू, और दिस इज लॉग ऑफ x माइनस ये लॉग मॉड x माइनस वाई, देन बाद में ये माइनस वाई प्लस सी, ये 2c डैश की बदले 2c डैश इज टेकन एज c। सो ये हमारा हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। आफ्टर गेटिंग द जनरल सॉल्यूशन दे आर आस्किंग अबाउट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है। व्हेन y इज इक्वल टू -1 x इज इक्वल टू 0। ओके, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, बराबर ना। अभी क्या दिया हुआ है नाउ, व्हेन y इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो c मिल जाएगा। सो x इक्वल टू 0, फिर y इक्वल टू -1 रखेंगे तो ये तो लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 1 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। फिर ये -1 करेंगे तो दिस विल बी +1 एंड प्लस c। ठीक है ना, राइट। तो अल्टीमेटली log 1 इज ऑल्सो 0, सो c इज इक्वल टू क्या मिला आंसर, c इज इक्वल टू -1 मिला। इज दैट क्लियर। तो c इज इक्वल टू -1 जो आंसर मिला वो यहाँ पे आप c की जगह पे रिप्लेस कर दो, एंड सो यू हैव द पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज, तो क्या आ जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन अब दोस्तों, राइट। तो इसमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन में खाली c के बदले हम -1 कर देंगे, दैट्स ऑल, बराबर। और फिर वो मे बी आंसर कैसे लिखा होगा, हमारा आंसर भी राइट ही होगा, लेकिन आप पीछे देखोगे तो थोड़ी टर्म्स जो है ना वो इधर उधर होगी। ये -y -1 ये हमारा आंसर, बट अब मे बी उसमें ये करेंगे कि ये -y -1 को इस तरफ ले लेंगे, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग मॉड x माइनस वाई, बट दैट डजंट मेक्स एनी difference. Okay, so this way, okay, this is the answer. ठीक है ना, right? So now dear children, I am not taking further from this exercise. Whatever the sums are not cancelled out, you just try at your own, and in the homework what you do, you just finish the whole exercise. ठीक है, in the homework you just complete the exercise 9. एक्सरसाइज 9 फुल। ठीक है, अब पूरी एक्सरसाइज करोगे, कोशिश कर लोगे। ठीक है, राइट। और जो भी डाउट्स है, वी आर मीटिंग इन पर्सन ऑल्सो नाउ, डाउट्स है तो यू कैन आस्क मी इन द पर्सन, नो प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी बिगिनिंग a new chapter, that is chapter 10, very easy chapter, that is vector algebra. Okay, thank you very much, have a nice day, hope you understood the whole chapter. Thank you.